نبین لے کر میں آپ کا میزبان محمد حسین ظفر۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: وادی میں آج مطلع رہا ابرآلود، کئی اضلاع میں ہلکی بارش، کل سے گرمی میں اضافے کی پیش گوئی۔ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کے لیے PMGSY فیز 4 کے تحت 4224 کروڑ روپے کیے منظور۔ غیر قانونی کان کنی سے کئی علاقوں میں سینچائی کی سکیمیں بیکار، کسان پریشان، ذمہ دار کون؟ PDP آج بھی BJP کے ساتھ رابطے میں ہے، نائب وزیر اعلیٰ کا اظہار خیال۔ اور سونمرگ میں ہوٹل مالکان، گوڑے بان اور دکانداروں کی لوٹ جاری، سیاحوں اور مسافروں کو کھلے عام لوٹنے کی آ رہی ہیں شکایات۔ اور بھی کئی موضوعات سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، شری امرناتھ جی یاترا کے لیے آج بھگوتی نگر جموں بیس کیمپ سے 7000 سے زائد یاتریوں کا 9واں قافلہ سخت حفاظتی بندوبست کے بیچ کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ حکام کے مطابق اب تک 1,28,000 یاتریوں نے پوتر گفا کا درشن کیا۔ واضح کہ اس سال جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے 2 جولائی کو بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہلے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر کشمیر کے لیے روانہ کیا تھا۔ آج کی یاترا پر ایک رپورٹ ایس طارق کی زبانی۔ شری امرناتھ یاترا دن بھر پرامن اور روایتی انداز میں جاری رہی۔ صبح 4:45 بجے نونول بیس کیمپ سے 4473 یاتریوں نے چندنواری میں رجسٹریشن کے بعد اپنا رخت سفر باندھ لیا ہے۔ اس طرح ہوٹلوں اور آٹو میں قیام کرنے والے دیگر شردالو بھی آج صبح اپنی یاترا شروع کر چکے ہیں۔ دوپہر 12:30 بجے چندنواری کا گیٹ بند ہونے تک کل 8684 یاتری کے اگلے پڑاؤ ششناگ پنچترنی پہنچ چکے ہیں، جہاں رات قیام کے بعد کل صبح گفا کی طرف روانہ ہو کر شیولنگم کا درشن کریں گے۔ آج ششناگ اور پنچترنی سے روانہ ہونے والے 9106 یاتریوں نے بابا بولے کے گفا میں شیولنگم کے درشن کر لیے ہیں، جبکہ آج دن بھر درشن کا سلسلہ جاری رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 جولائی سے کل شام تک 1,27,420 یاتری بابا برفانی کے درشن کر چکے ہیں۔ اس دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 7307 یاتریوں پر مشتمل قافلہ سالسر اور پہلگام کی طرف روانہ ہوا، جن میں پہلگام کے روایتی روٹ پر 147 گاڑیوں میں 4226 یاتری نونول بیس کیمپ پہنچ چکے ہیں۔ آج کا دن اس لحاظ سے بھی اہم رہا ہے کہ آج شیو اور شکتی کے پرتیک چھڑی مبارک پہلگام کے گوری شنکر مندر پہنچ گئی ہے، جہاں چھڑی مبارک کے کسٹوڈین مہد دپندرا گری کی قیادت میں خصوصی بھومی پوجن اور سہج روہن کا انعقاد کیا گیا۔ آج آشاڑھ پورنیما کا دن ہے، ویاس پورنیما اور گرو پورنیما کے نام سے بھی یہ پرچلت ہے، اور آج پراتہ کال ہم دشنامی اکھاڑا سری نگر سے چھڑی مبارک، جو کہ شیو اور شکتی کا سوروپ ہے، اس شکتیکاؤں کو لے کر چھڑی وشرام ستھل پہلگام آئے، اور یہاں آ کر ہم نے ابھی بھومی پوجن، نوگرہ پوجن، شکتیکاؤں کا پوجن کیا اور دھوجا کا پوجن کر کے دھوجاروہن کیا۔ اب ہم ہون کریں گے، اور ہون کرنے کے پشچات بھوجن کا آیوجن ہوگا۔ جتنے تیرتھ یاتری شیو بھکت اپستھت ہیں ان سب کو بھوجن کرا کر ہم واپس سری نگر جائیں گے، اور مارگ میں جو ایتہاسک مارتنڈ تیرتھ ہے وہاں پر کنڈ میں چھڑیوں اسنان ہوگا، اور وہاں پر درشنارتھ چھڑیوں کو استھاپت کیا جائے گا، تاکہ وہاں جو اکترت بھکت جن ہیں وہ چھڑیوں کے درشن کر پائیں، اور واپسی ہم سری نگر جو چھڑیوں کا وشرام ستھل ہے وہاں پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ آج کا کاریکرم اس کا سماپن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پہلگام سے امرناتھ گفا کے روایتی روٹ پر موسم خوشگوار رہا، مگر مسئلہ ابرآلود ہے، جبکہ رات کے دوران رک رک کے بارشیں ہوئی۔ یاترا انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کے لیے تمام انتظامات بہم رکھے گئے ہیں۔ پہلگام سے گفا تک 24 گھنٹے بہتر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بجلی، پانی اور دیگر چیزوں کی دستیابی رکھی گئی ہے۔ محکمہ طب و نگہداشت کی گشتی ٹیمیں پوری یاترا مارگ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یاترا انتظامیہ اور شری امرناتھ شرائن بورڈ باریک بینی سے یاترا کو مانیٹر کر رہی ہے۔ امرناتھ یاترا پر آپ نے اس تاریخ کی
रिपोर्ट सुनिए। इधर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए मजीद रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के मुतालबे के हक में आज एहतजाज किया। सभी जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने आज पांपोर में वाक़ EDI में एक तकरीब में शमूलियत की। इस मौके पर उन्होंने ज़राए अबलाग की तरफ से एक सवाल के जवाब में कहा कि रियासत का खुसूसी दर्जा ख़त्म कराने में PDP का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी PDP भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि PDP ने माजी में इक़्तिदार के लिए भाजपा के साथ इत्तेहाद करके जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया और अब भी ये जमात उन्हीं के मफादात की तकमील में मसरूफ है। वो यही कर करके ये ड्रामे कर करके 3 पे पहुंच गई है और आज जो जम्मू कश्मीर का स्टेट टूटा इसी पीडीपी के कारण टूटा। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस टूटा इसी पीडीपी के कारण टूटा। इस पीडीपी को मेरा पहला ही सवाल है कि मुझे जवाब दो। जम्मू कश्मीर आपसे जवाब मांग रहा है। बताइए ये स्टेट आपने क्यों तोड़ी, इसको यूटी क्यों बनाया? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस पीडीपी वालों ये आपने तोड़ा। जिस बीजेपी ने तोड़ा उस बीजेपी को लेके आप आए थे। पहले इस पे बात करो, उसके बाद स्कीमों के बात करेंगे। आपको याद है एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी जब आई थी, पीडीपी की लीडर उसमें असेंबली में क्या कहा था, मैं नहीं बोलूंगा, आपको पता है क्या कहा था। थोड़ा सा जाके वो रिकॉर्ड असेंबली का निकाल लें जब पीडीपी सरकार में थी बीजेपी के साथ, उसमें उनको नशा था बीजेपी के साथ। आज क्या है, अंदर अंदर से कहानी पूरी है। ये मत सोचो कि अंदर कहानी नहीं है। आज भी बीजेपी और पीडीपी एक है और अंदर खाते वो एक ही चल रहे हैं। रात को जो स्लिप भेजती है दिल्ली से कि ये भाई सुबह आपने बोलना है, तो पीडीपी वो बोलती है। नायब वजीर आला ने EDI पांपोर में तकरीब में की शमूलियत। ज़राए अबलाग के साथ बातचीत के दौरान PDP की खुलकर की तनकीद। अब एक और मौजू। सभी गुज़श्ता दिनों के दौरान वसी पैमाने पर होने वाली बारिशों के नतीजे में वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार है और लोगों को 15 दिनों की शदीद गर्मियों से राहत मिली है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने 11 से 13 जुलाई तक गर्म और मरबूत मौसम की पेशगोई की है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 11 से 13 जुलाई तक दर्जा हरारत में फिर से इजाफा होगा। अलबत्ता 14 से 16 जुलाई के दरमियान फिर से गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। साबिन वादी में हर गुजरते दिन के साथ सयाहों की तादाद में इजाफा दर्ज हो रहा है, जिससे शोबे सयाहत से वाबस्ता अफराद और इदारों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। पहलगाम, गुलमर्ग और सोनामर्ग में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश देखा जा रहा है, जिससे बाजारों और पार्कों की रौनक बहाल हो चुकी है और मकामी लोग भी अपना रोजगार करते नजर आ रहे हैं। अलबत्ता इन सयाहती मकामात पर होटल और गेस्ट हाउस मालिकान मकामी दुकानदारों ने सयाहों से इजाफी किराया वसूल करने के साथ साथ उन्हें दो हाथ लूटने का सिलसिला जारी कर रखा है। बाज़ कश्मीरी सयाहों ने यहाँ तक बताया कि जो होटल कमरा उनसे सिर्फ एक माह कबल 1000 से 3000 तक के किराए पर मिलता था, वो इस बार 7000 से 10,000 तक का तकाजा करते देखे जा रहे हैं। सामीन को याद ही होगा कि पहलगाम सानी के बाद होटल मालिकान ने खुसूसी रियायत और पैकेज का ऐलान किया था, सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी थी और साथ ही मकामी लोगों को सयाहत को बचाने के लिए इन मकामात की सैर करने की भी अपील की। मगर सयाहों के लौटने के साथ ही ये मकामी सयाहों को भी लूटने लगे हैं और अपने ऐलानात और अपनी अपीलें भूल गए हैं। इसी तरह दुकानदार, गोडेबान और दीगर अफराद भी आजकल मन मुआफिक कीमतें वसूल कर रहे हैं। सोनामर्ग से रहीम रिजवान की रिपोर्ट। शोरे आफाक सोनमर्ग में होटलियर, दुकानदार, ढाबे वाले, घोड़े वाले और सूमुल गाड़ी वालों ने मकामी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सयाहत के नाम पर दो हाथों से लूटना शुरू किया है। लेह लद्दाख जाने वाले मुसाफिरों, मकामी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शहरबीन को बताया कि बहसरन, पहलगाम, सानिया के बाद सयाहत से वाबस्ता लोगों ने ढूंढूरा पीटना शुरू किया कि हर सयाहती मकाम पर सैर तफरी के लिए आने वाले सयाहों को खुली छूट दी जाएगी ताकि सयाहती शोबे की बहाली के लिए इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर बेहतरीन इक़दाम किए जाएं। ताहम इस दावे को शोरे आफाक सोनमर्ग आने वाले सयाहों ने यकसर मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि यहाँ सयाहों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि होटल मालिकान तमाम सरकारी हुक्मनामे को बालाई ताक रखकर अपनी मन मानी करके एक मामूली कमरे में रात भर रुकने के लिए 2 सयाहों से 12,000 से 15,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा सुबह का नाश्ता उन्हें फराहम किया जाता है, जबकि एसी वाले कमरों के लिए उन्हें भारी रकूमात अदा करने पड़ते हैं। इसी तरह ढाबे वाले, दुकानदार और छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स यहां से गुजरने वाले सयाहों और लेह लद्दाख जाने वाले मुसाफिरों को लूटने में
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। सयाह और लेह लद्दाख जाने वाले मुसाफिरों ने शिकायत की है कि उन्हें मामूली चाय का प्याला पीने के लिए मुंह मांगी रुकूमात अदा करने पड़ते हैं। इसके बावजूद उन्हें चाय, रोटी और खाने पीने के नाम पर किस तरह की चीजें खिलाई और पिलाई जाती हैं वो बयां से बाहर है। इसी तरह सोमू गाड़ी वालों ने भी दो दो हाथों से यहाँ लूटना शुरू किया है और वो भी सयाहों से 3 गुना इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं। सोनमर्ग से फिश पॉन्ड तक जाने के लिए उनसे हजारों रुपए बतौर किराया वसूल किए जा रहे हैं। अलावा अजीज, जोजिला, मिनीमर्ग, बालतल और दीगर मकामात पर आने जाने के लिए बारी रुकूमत सयाहों से किराया के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। इस बीच घोड़े वाले भी सयाहों को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। सयाहों के मुताबिक उन्हें सोनमर्ग पहुंचते ही घोड़े वाले दाएं बाएं घुमाकर वापस लाते हैं और उनसे मुंह मांगी रुकूमत वसूल कर रहे हैं। अगरचे सोनमर्ग में हर तरह की सिचुएशन पटरी पर लाने और बेहतरीन निजाम कायम करने के लिए हत्ता कि सयाहों को मुआफिक और आला मयार की सहूलियात मुनासिब कीमतों पर फराहम कराने के लिए कई महकमे काम कर रहे हैं। ताहम रवा माह के दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है, जिसको लेकर तमाम सब डिवीजन कंगन और जिला अफसरान यात्रा के साथ बालतल से गुफा तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस दौरान सोनमर्ग में सयाहत के नाम पर छूट देने वाले सयाहों को वादी की तरफ रागिब करने वाले और सयाहती शोबे की बहाली के लिए बड़े बड़े दावा करने वाले ताजिर सयाहों से इजाफी रुकूमत चार्ज करके माल कमा रहे हैं और सयाहती शोबे को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा सरकार और LG इंतजामिया की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएंगे ताकि यहाँ आने वाले सयाहों और मुसाफिरों को राहत मिलेगी और उन्हें माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सोनमर्ग में होटल मालकान की लूट फिर से शुरू, तफसीलात दे रहे थे रहीम रिजवान। इधर पहलगाम हमले के बाद वादी में अभी भी कई सयाती मकामात को दोबारा नहीं खोला गया है, जिस वजह से इन मकामात के साथ वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर है और ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बंद पड़े सयाहती मकामात को जल्द अज जल्द सयाहों के लिए खोला जाए। इस हवाले से सयाहती मकाम ददपत्री के नौजवानों, खासतौर सयाहत से वाबस्ता नौजवानों ने LG से अपील की है कि ददपत्री और यूसमर्ग को सयाहों के लिए फौरी तौर खोला जाए, क्योंकि हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर हो चुका है, जबकि सैकड़ों अफराद ने जिंदगी भर की पूंजी और साथ ही बैंकों से कर्जा लेकर इस शोबे में इन्वेस्ट किया है और इस वक्त वो बैंक की किस्त भी अदा करने से कासिर हैं, जबकि उनके घरों में फाका कशी के हालात हैं। बशीर अहमद बस रोजान ये रोयार कराल पत्र मज गो मुश्किलात गो ये कोड़ लोन रपस 30 लाख 50 लाख 20 लाख बनायोक होटल रोजगार खतर ये रोजगार तव छीन अने ATV रपस 20 लाख 18 लाख ये तव छीन वनकस जमीन पेवान कनुन या पन पान गिरो बंद पेवान थवन गिरो बंद पेवान पान कश बीस पेवान तलबस पे गसन अत पेवान किस्त भरन ये नहत गसन अपील गवर्नमेंटस करान गवर्नर साहबस अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी सान बचन पे पे असर सानिस गरस पे पे असर कहन मजूर बेरोजगारी वनकस बेरोजगारी सकान वारिया कह गसित बेरोजगारी वनकस मेहरबानी तो मेहरबानी करो कम ये कुन दीजियो तवज्जो ये सो यल क्या अस मिले ये रोजगार सान बचन तक मिले शाम खुशनुद आलम क्या गुमुत गुमुत प्रॉब्लम दोस 10 रुपये दिवान जेन बच्चे पारान वनकस तमिस फीस खतर तमिस कलम खतर तमिस किताब खतर रुपये 10 जरूरत यम बा खुदा मिलान कुन जाए असे अल्लाह ताला दितो रोजगार मगर अस लगान पाई अस कम छून यह राहिल गवर्नमेंटस अपील करान मेहरबानी कर तो अस पे रत दद पथ रेल बन सुबह गसान 5-7 रुपये सास वाला अति शाम पानस अति पन रोजगार कर पे चूर कर खतर मजबूर ये करो कि तवज्जो कि करो कायम दो पन दूध पथरी बंद हो गई है, सब कुछ मान लो चेंज हो गया है। मतलब हमारी तो पूरी ये बंद होने से पूरा असरात पड़े हमारे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर कोई डिपेंड कर रहा था टूरिस्ट पे ही। जब से यहाँ पे दूध पथरी में टूरिस्ट बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे टूरिस्ट आ रहे थे, लोकल भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हर कोई आ रहा था। जब से पहलगाम वाक़ा हो गया था तो सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पे जितने भी लोग इस पे डिपेंड कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि दूध पथरी को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, हमारी परेशानी को समझा जाए। हमें नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके पास भी हम जाते हैं वो हमें बोलता है कि 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। इसी में हमारी 3 महीने चले गए। दूध पथरी और दीगर सयाहती मकामात को सयाहों के लिए फौरन खोला जाए। इस दौरान
पीडीपी लीडर शहनवाज मीर ने भी मुतालबा किया है कि दत्तपत्री और यूसमर्ग को फौरी तौर से सयाहों के लिए खोला जाए, क्योंकि ये मकामात बंद रहने से हजारों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इधर साबिक वाइस चेयरमैन और सियासी लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू ने आज वज़ीर आला के अवामी राब्ते दफ्तर के सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि यूसमर्ग, तोसमैदान और दत्तपत्री को सयाहों के लिए खोला जाए, क्योंकि ये मकामात बंद करने से हजारों कुंबे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अब एक और मौजूद। सभी जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार होने पर हजारों उम्मीदवार मायूस और परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भर्ती अमल में फौरी तौर सूरत लाई जाए। इस हवाले से बाज़ उम्मीदवारों ने शेरबीन आकर बताया कि कांस्टेबल की भर्ती के मकसद से उनका तहरीरी इम्तिहान दिसंबर 2024 में लिया गया था और इस ताल्लुक से नताइज का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया, मगर इसके बाद आज तक उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट नहीं लिया गया और न ही इस ताल्लुक से कोई तारीख मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों के मुताबिक वो अपनी तमाम तर तवज्जो और तैयारियां फिजिकल टेस्ट पर मरकूज कर चुके हैं, मगर टेस्ट मुनक्कद कराने में हो रही गैर ज़रूरी ताख़ीर से वो काफ़ी मायूस हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भर्ती अमल मजीद किसी ताख़ीर के अपने अंजाम तक पहुँचाया। जहर का इंतखाब बिजबिहाड़ा में इस साल किसानों को अपने खेत और बागात सहेजने के लिए मुनासिब पानी न मिलने से वो काफ़ी परेशान रहे और बाज़ किसानों को पनीरे लगाने के लिए भी मुनासिब पानी नहीं मिल सका। इलाके में सिंचाई के नहरों की मरम्मत, वक्त पर सफाई न होने और नहरों और नालों के किनारों पर तजावुज़ात खड़ा करने से पानी की रसाई असरअंदाज हो चुकी है, जबकि दरियाई जहलम समेत दीगर नदी नालों में बेहंगम, गैर साइंसी और गैर कानूनी कानकनी से भी पानी का बहाव इस कदर असरअंदाज हुआ है कि कई लिप स्कीमें बेकार हो गई हैं। महकमा फ्लड एंड इरिगेशन के पास फंड्स और अफरादी कोत की कमी के बायस उनके हाथ बंधे पड़े हैं, जबकि सरकार भी इस मामले में गैर संजीदा नजर आ रही है। हमने जब इस मामले की निस्बत से MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी से बात की तो उन्होंने एतराफ़ किया कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान इस ताल्लुक से कोई काबिल कदर काम नहीं हो सका है और यही वजह कि आज किसान सख्त मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं। जी जफर साहब, ये हकीकत है, इसमें कई सारे फैक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से ये जो सिंचाई की नहरें हैं, इनकी तरफ खास खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई है। ये सिल्ट से भरे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी जो है बहुत ही कम हो चुकी है, इनमें जो विड्थ थी वो कम हो चुकी है। एनक्रोचमेंट की वजह से ये तकरीबन बड़ी जो नहरें थी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा इनकी देखरेख के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफी सारा पैसा लिया गया है जो पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया गया। तो मैंने MLA बनने के इमीडिएटली इन पूरी बड़ी नहरों पे एक वॉक लिया, मुतल्लिका हुकाम को अपने साथ उठाया और हमने जगह जगह जरूर किया, हमने जो परेशानियां इसको फेस हो रही हैं। उसके बाद हमने इमीडिएटली थोड़ा सा डिसिल्टिंग प्रोसेस शुरू किया और इन नहरों की देखभाल और इनकी जो स्मूथनेस है उसको बहाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह का करम है कि थोड़ा सा पानी हमें इतना ड्रॉट होने के बाद भी लोगों को दस्तयाब हुआ। लेकिन जिस तरीके जो कमांड है, आप हैरान होंगे, जो नांदी कनाल है, इसी जमाने में इस नांदी इलाके को बाउल ऑफ राइस कहा जाता था, जो कश्मीर को यहाँ से फूड ग्रेन्स सरप्लस यहाँ से पैदावार होती थी और उनको फराहम होता था। लेकिन पिछले 6-7 सालों से यहाँ के लोग मक्की की काश्त करते हैं, क्योंकि इनको पानी खातिर खा नहीं मिलता है। इस साल मैंने वहाँ जब देखा जो इसके हेडवर्क्स है, वहाँ पे इतना अनएबेटेड अनसाइंटिफिक जो माइनिंग हुई है, जिसकी वजह से इसके हेडवर्क्स जो है तकरीबन जहाँ से पानी इनटेक होता था वो 3 मीटर ऊपर चला गया है और 3 मीटर डेप्थ हुई है जहाँ से पानी इस नदी में आता था। तो मैंने मुतल्लिका हुकाम से, खासकर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से उस वक्त रब्ता किया एंड ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया और फिर हमने वहाँ पे एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जो हमें तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर इसी नहर के अंदर से जाना पड़ा, तब जाके हेडवर्कर्स हमारे उसके साथ मैच हुए तो वहाँ से हमको ये पानी लाना पड़ा। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल नहर बनी है उसमें सीपेज है, उसमें पूरी तरह से कंक्रीटाइजेशन नहीं हुआ। हमने पॉलीथीन का भी इस्तेमाल किया तो किसी हद तक हम कामयाब हुए, लेकिन जब पानी की सतह और भी कम हुई तो हम इसमें पूरी तरह से वो पानी हम नहीं दे पाए। और जितने इसमें ऑगमेंटेशन के लिए टेल एंड पे तकरीबन 8 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स काम कर रही। जो रिवर बेड माइनिंग हुई है वो भी इन लोगों ने पिछले 8-9 सालों में पूरी तरह से माइनिंग की बड़े बड़े मशीन इस्तेमाल किए हैं और जो दरिया का जो बेड है वो बहुत नीचे चला गया और जो ये लिफ्ट इरिगेशन के सम्प है जहाँ से पानी ऊपर लिफ्ट होता है वो हवा में है इस वक्त
اور وہ بھی تقریباً 8 میں سے ہمارے 6 پمپ اسٹیشن جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. ہم نے کئی جگہوں پہ ڈراٹ پمپس کا استعمال کیا تاکہ اس کا آرگیومنٹ کیا جائے یا اس کا آلٹرنیٹ وہاں پہ فراہم کیا جائے, لیکن جو طاقت اور جتنے کیوسک کی کیپیسٹی ان لفٹ اریگیشن کی ہے اتنی شاید وہ ڈراٹ پمپس اس کا نام البدل نہیں بن سکتے. تو اسی طرح کئی سارے مشکلات کا سامنا ہے اگر ہمیں اپنی پیڑی کو بچانا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم آج تک اگر زندہ رہے یہاں 35 سال کے نامساعد حالات میں کشمیری اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں گیا, محتاج نہیں بنا, تو اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ تھا اور ہمارے پاس جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں خاک بتا جو تھا, فوڈ گرینز اور ویجیٹیبلز اینڈ ادر جتنے بھی ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہماری چیزیں ہیں وہ گھروں میں دستیاب تھی. تو اس چیز کو ملاحظ نظر رکھتے ہوئے میرا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں خاص کر میرا جو فوکس ہوگا وہ اریگیشن پہ زیادہ رہے گا, ایگریکلچر پہ زیادہ رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری اکانومی اور ہمارا سروائیول خاص کر جموں کشمیر جیسی پہاڑی ریاست کے لیے اسی میں ہے. گزشتہ 10 برسوں کے دوران لفٹ اسکیموں اور نہروں کی طرف مناسب توجہ نہ دیے جانے کے باعث آج کسانوں کو پانی نہیں مل پا رہا ہے, اعتراف کر رہے تھے MLA بیج بہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویرے. کلگام سے فاروق راتر نے خبر دی ہے کہ تقیبل کیلم کلگام کے نزدیک آج ایک موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے جن میں ایک ٹریفک اہلکار بھی شامل ہے. ادھر شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ سے تعلق رکھنے والے ایک 54 سالہ ڈرائیور کی آج صبح کدلبل پاپور میں پراسرار حالت میں لاش برآمد ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق مہلوک کی شناخت سجاد احمد شاہ کے طور ہوئی ہے جو پانزگام کپواڑہ کا باشندہ ہے اور بطور ڈرائیور کام کر رہا تھا. ادھر ضلع ادھمپور میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک گاڑی سڑک سے پھسلی اور اس وجہ سے 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. سامعین, کل نیشنل کانفرنس کی طرف سے مادر مہربان بیگم اکبر جہان کی 25ویں برسی کے سلسلے میں تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ میں انتظامات کو حتمی شکل دی گئی. کل صبح 10 بجے حبک نسیم باغ میں اجتماعی فاتح خوانی ہوگی جس میں پارٹی قیادت بھی شامل ہو رہی ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر اور AICC کے رکن سریندر سنگھ چینی نے آج ضلع کلگام کے ایک روزہ دورے کے دوران پارٹی دفتر میں ایک اجلاس کی صدارت کی. یہ اجلاس ضلع کانگریس کمیٹی کلگام کی جانب سے ضلع صدر عبدالرشید لون کی قیادت میں منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں سابق MLA دیوسر محمد امین بٹ بھی موجود رہے. سامعین, ضلع پونچھ کے مینڈر سب ڈویژن میں موسلادھار بارشوں کے دوران چک بنالا علاقے میں پہاڑی کھسکنے سے 12 سالہ بچی عافیہ کوثر جاں بحق ہوئی ہے. ادھر ڈپٹی کمشنر اور SSP نے الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید نقصان سے بچاؤ کے لیے ہدایت دی ہیں اور کہا کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا انتباہ دیا ہے اور لوگوں کو احتیاط رہنے کی ضرورت ہے. بڑگام سے یونس پری نے خبر دی کہ پولیس اسٹیشن بڑگام کے مین گیٹ کے قریب بجلی ٹرانسفارمر کے پھٹنے کے نتیجے میں ڈیوٹی پر تعینات پولیس کانسٹیبل الطاف احمد بٹ ساکن وڈی پورہ چاڈورہ ازجاں ہوا ہے. واقعے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا. اب ایک اور موضوع. سامعین, جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 12,000 ڈیلی ویجر کی خدمات انجام دے رہے ہیں جو ہر موسم اور ہر وقت بجلی کی بلا خلل فراہمی یقینی بنانے میں پیش رہتے ہیں. جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے صدر مشتاق احمد نجار نے لیفٹنٹ گورنر سے اپیل کی ہے کہ ان محنت کش ملازمین کو فوری طور مستقل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ کارکنان اپنی جوانی محکمے کو دے رہے ہیں مگر ریٹائرمنٹ کے وقت بھی یہ ڈیلی ویجر ہی رہتے ہیں. واضح ہے کہ جموں میں ان عارضی ملازمین کی طرف سے مستقلی کے لیے احتجاج جاری ہے جسے یونین نے برحق قرار دیا ہے. یونین نے حکومت سے پالیسی سازی اور ریگولرائزیشن کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عملے کی کمی بھی دور کی جا سکے. کانگریس میں حالیہ دنوں واپسی کر چکے سابق وزیر غلام محمد سروری آج کل کشتواڑ کے دورے پر ہیں. آج سنتھم میدان میں سینکڑوں کارکنان نے ان کا خیر مقدم کیا. ذرائع کے مطابق غلام محمد سروری نے وہاں پر خطاب بھی کیا. پارٹی حلقوں میں دورے کو سیاسی طور کافی اہم مانا جا رہا ہے. ادھر PDP لیڈر غلام نبی لون ہنجورا نے سرسیار اور ڈاڈوم پورہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سڑک کی خستحالی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے 10 ماہ کے اقدار کے باوجود زمینی سطح پر کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی ہے. ہنجورا نے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی مشکلات کو دور کرنے کی اپیل کی ہے. مرکزی وزارت دیہی ترقی نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا فیز 4 کے تحت جموں کشمیر کے 19 اضلاع میں 316 سڑک پروجیکٹوں کی تعمیر کے لیے 4,224 کروڑ روپے کی
रकम मंजूर कर ली है। इन सड़कों की मजमूई लंबाई 1781 किलोमीटर है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के महकमा तामीरात आमा यानी PWD को रुकमात मिलने के साथ ही टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। डोडा से मिली इतलात के मुताबिक वहाँ कम्युनिटी हॉल में आज बुजुर्ग शहरियों में मुफ्त मोमिन आलात तकसीम किए गए। बताया जाता है कि कई बुजुर्गों को व्हील चेयर और आलात समावी भी दिए गए हैं। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान से मीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। इबादत वही जो दिल से हो।